as well. Hate begets hate, and as far as the VHP leader is concerned, no arrest, no censure, no case has been filed after his hate remark which was recently made. And of course, as we know, the leader perhaps made this remark, upon which now we have several political reactions from the opposition side also pouring in. However, the point is that no case has been filed so far. So who is exactly emboldening the incitement and the hatred in our nation? And this is happening for both sides. Now this time, at the Trishul Diksha event in Manesar, the VHP Joint Secretary spewed venom from the stage, and what is surprising that there has been no arrest that has been made, no action that has been taken so far, rather no cognizance as well that has been taken of the statements that were filled with hate that was said from this VHP leader. And that's the question that we are, of course, asking on Times Now today. But as far as the remark is concerned, the leader glorified those attacks, Namazis, as Bajrangis. Wo ghar mein ghus ke marenge is the remark which has been made by the VHP leader. Let me open my colleague Mohit Bhatt over the phone line. Mohit, that was a shocking remark that was made by the VHP leader, which we also took up on Times Now even yesterday as well. But so far, no case has been filed in this matter. Mohit, can you hear me? Right, we'll try to sort the connection out, but as far as the statement is concerned, the leader came forward glorifying those who attacked Namazis recently in Gurugram, wherein the incident was reported. Perhaps he further went on a rant against love and land jihad by the community and warning them to pack up and leave. Absolutely. So as far as this VHP Joint General Secretary Surendra Jain is concerned, because he's been alleging land jihad by one community and has justified the attack on Namazis in Gurugram as well. We have been reporting from the area because he glorified those who attacked the Namazis as Bajrangi, says कि वो घर में घुस के मारेंगे. He further went on a rant against love and land jihad by the same community and warning them to pack up their bags and leave. And so what's emboldening is that this free run which has been given to the hate, and also we know that in a dire threat, he also vowed that he's ready to pick up arms for Dharm Raksha. बड़े साफ हैं। आज भौरा कला, कल गुड़गांव, फिर मानेसर, फिर पूरा हरियाणा और धीरे धीरे पूरे भारत को ये दाऊद इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं। घर में घुसकर मारेंगे, वहां पुलिस पीट कर आती है और हमारे बजरंगी वहां जाकर पीट कर। हमारा हर जय नारा हमारा संकल्प है कि यदि तुम भारत की ओर आंख उठाकर देखोगे, यदि तुम भारत का एक और बंटवारा करोगे, तो ध्यान कर लेना, भारत में तुम हिजाब के नाम पर दंगे कराओगे, नागरिक संशोधन के नाम पर शाहीन बाग लगाओगे, तो ध्यान कर लेना तुम्हारा मुकाबला बजरंग दल से होगा। वैसे ही समझ लो, जहां साहब वहां आतंकवाद। विनोद बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, एक सीधे तौर पे स्टेज पे खड़े होकर अगर इस तरह से धमकी दी जाएगी, सर इसे कैसे समझा जाए, और क्या आप इनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। देखिए, बात यह है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक रेपुटेड कॉलेज के प्रोफेसर रिटायर्ड हुए हैं और इतने गंभीर व्यक्ति, इतने सम्मानजनक पोजीशन पर विश्व हिंदू परिषद के हमारे संयुक्त महामंत्री हैं, उनको अगर मेवात की इस धरती पर, गुड़गांव की इस पुण्य भूमि पर ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप उस विषय तो क्या आपको पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं है सर? क्योंकि अगर वो सीधे तौर पे इस तरह से बोलेंगे कि घर में घुसकर मारेंगे, क्या आप उसे सीधे तौर पे सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पुलिस तो पिट के आ जाती है, हमारे जो बजरंगी है वो वहां पहुंचेंगे, मौलवियों को एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि आप अपने बैग पैक करिए और यहां से निकलिए। देखिए, बात यही है ना, आप देखिए ना, जब पुलिस पिट के आ जाएगी तो अब कौन बचाएगा हिंदुस्तान को? हिंदू समाज को कौन बचाएगा? इस बात से आप इस बात की गंभीरता को समझिए। पर इसके चलते तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले सकते ना विनोद बंसल जी। लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह रहेगा, पुलिस का काम अपनी जगह रहेगा। कोई भी आके अगर वर्दी पहन के अगर यही स्टेटमेंट दे और यही काम करने लगे, तो वो तो फिर सब सड़कों पे उतर जाएंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट को तो खुलेआम सपोर्ट करना तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नफरत की बात करें तो ये मत भूले कि नफरत की आग में तो सब लोग ही फिर लिपटते हैं।
नहीं, देखिए ये नफरत की आग नहीं है, ये सच्चाई के प्रति आंखें खोलने वाली बात है। बात को जरा गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। मुझे जरा आधी मिनट दीजिए, मैं आपको बात को पूरा समझाता हूँ। देखिए ये वो क्षेत्र है जो मेवात का, जिसके 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, और हम लगातार पिछले कई दशकों से, ये डॉक्टर सुरेंद्र जैन चूंकि हरियाणा के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र से अच्छी तरह समझते हैं, उस प्रांत के प्रभारी भी हैं, एक एक स्थान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और उनको जब ये भान हुआ कि पुलिस भी वहां पर नहीं जा सकती, पुलिस की भी पिटाई करने लग जाती है, तो फिर आखिरकार क्या, हिंदू समाज को तो खड़ा होना पड़ेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन जिहादियों खड़े हैं। नहीं मतलब ये समझ में नहीं आता ना सर, क्योंकि हमने वहां पर रिपोर्टिंग करी, हमने वहां लोगों से बातचीत करी, और वहां के जो लोग हैं जो इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों नहीं चाहता कि एक दूसरे के घर जले। तो इस तरह के का अगर बातचीत अगर हो सकती है तो हमें ये धमकी देने की नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि ये सुरेंद्र जैन तो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े धर्म रक्षा के लिए हम तो हथियार भी उठाएंगे, उसके लिए भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। भाई देखिए, ये भारतीय संविधान हमें इस बात की मान्यता देता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी है ना सर, आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम तो पुलिस के साथ खड़े हैं। तो घर में घुस के मारेंगे उसे किस तरह से समझा जाए? देखिए जो लोग पुलिस को पीट रहे हैं उनको पीटने का काम तो हमारा है ना। आखिरकार जब मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला तो सर सरकार के ऊपर तो कुछ छोड़ दीजिए, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार को तुम कहते थक गए, दशकों से कह रहे हैं। आखिरकार आप कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उस जगह के, जो आपने गुरुग्राम का मुद्दा उठाया, और अगर आपके पास है तो आप एक प्रॉपर चैनल फॉलो करिए ना, आप मामला आगे लेकर जाइए। अगर वहीं दूसरे कम्युनिटी के लोग कल को ऐसी स्टेटमेंट देने लग गए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक नहीं, कम से कम 10 डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री से भेंट हो चुकी है और गृह मंत्री से मिल चुके हैं हम। और आप देखिए कि वहां पर बाकायदा एक SC/ST कमीशन जो वहां का जो वाल्मीकि महासभा का जो चेयरमैन थे, जस्टिस रिटायर्ड पवन कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। वो कमेटी बाकायदा पूरे मेवात क्षेत्र के अंदर तो कल को तो फिर हर कोई ये कहेगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हमने इतनी गुहार लगा दी है तो अब हम सड़कों पे उतर जाएंगे, हम मारपीट शुरू कर देंगे। तो ये तो फिर जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेट और वायलेंस की कोई जगह ही नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नहीं, देखिए वो तो कर ही रहे हैं, और आज से नहीं दशकों से कर रहे हैं। इसी कारण तो 103 गांव हिंदू विहीन हो गया। आप जिस भाईचारे की बात कर रही हैं, आप जिस एकता की बात कर रही हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई सब लोग मिल बैठ के काम करेंगे या एकता रहनी चाहिए, वो है कहाँ वहां पर? तो यही तो दुर्भाग्य है। हमने वहां के लोगों से बातचीत करी है विनोद बंसल जी, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम इतने दशकों से एक साथ रह रहे हैं, ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई, और ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय को सीधा ब्लेम किया जा रहा है, दोनों की तरफ से आ रहा है, दोनों की तरफ से अगर इस तरह से जो नफरत वाली बातें हैं वो हो रही हैं, और हम उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखिए हमारी तो बातों को आप नफरती ले रहे हैं, और वो वहां पर गला काट। मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ सर, मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ, मैं एक नहीं कह रही कि एक समुदाय की तरफ से आ रहा है, मैं कह रही हूँ दोनों समुदायों की तरफ से आ रहा है, और हम उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सीधे तौर पे अगर आप धर्म रक्षा की बात करते हैं या आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप हथियार उठाएं और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले। सर ये सही तरीके से मैसेज नहीं जाता है सोसाइटी में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए कोई टारगेट आपके नहीं, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह समझ रही हैं। आपके रिपोर्टर ने भी बहुत गंभीरता से पूरा सर्वेक्षण किया, मुझे पता है टाइम्स नाउ ने कितनी मेहनत की है। आपके रिपोर्टर जान जोखिम में डाल करके वहां मेवात के इंटीरियर गांव में गए हैं, मुझे पता है इस बात का, और आपने बड़ी जबरदस्त स्टोरी अंदर से निकाल के दी है। वो स्टोरी बड़ी विभत्स थी। उन सब चीजों को लेकर के ही तो हिंदू समाज ये इस बात को कहने को मजबूर है। अब कहने को नहीं, अब करना भी पड़ेगा, ये भी बता रहा हूं आपको मैं। उन्होंने तो सिर्फ कहा ही है, आवश्यकता पड़ी तो हिंदू समाज को करना भी पड़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। आप देखिए, देश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना और एक दूसरे को धमकी देना, वो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। शुक्रिया बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Well, that's a big story that of course we are tracking on Times Now, and we are of course asking some tough questions over this particular case, but we'll keep tracking all the developments on that on the short break.